First of all, congrats for getting into a medical college. You're living a dream life of millions of people, so you can be happy about that. And I'm telling you, it's hella amazing. From being a topper in school to begging to just pass in college, you'll feel it all. कृपया अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए because your life gonna change upside down. Here are some suggestions that will actually help you to survive all those hard conditions. Sad part? Nobody told me these in my first year. Damn, lucky you. So, here we go. Rule number 1. Never ever trust anyone blindly. No one, either it's me, your senior at college, or anyone else. Everyone around us wears a mask. So use your brain. At least some of it. I know you don't have much. Just kidding. For instance, I say BDC is good for Inat, but you are much more comfortable in Vishram Singh. Then use Vishram Singh. Choose a book which you find easy to use, not just because तुम्हारे seniors ने use करी थी या फिर तुम्हारे friends use कर रहे हैं. This will save you from a lot of trouble. Moving to rule number 2, get yourself a circle you fits in. Kids nowadays, it's like a competition to have most friends. But now you don't have to do this. Just find 2-3 friends जिनके साथ तुम vibe करते हो. Be who you are. You don't need to pretend to be someone else just to fit in with them. If you don't like clubbing, drinking, smoking, then you need not to do that just for the sake of making friends. Trust me, तुम्हें तुम्हारे जैसा कोई मिल ही जाएगा. Just have patience. And always remember, a healthy circle is something where you all laugh together, sometimes you cry, but ultimately, everyone, each one of you, helps each other to grow. So choose wisely. Rule number 3, be straightforward. It will save you from a lot of chaos. Say what you feel. It's not being rude, it's called being real. But being straightforward doesn't mean कि तुम किसी के साथ में कुछ भी share कर लोगे. Don't overshare with anyone. Because who knows, a friend today can be an abuser tomorrow. So choose wisely what to share with whom. Rule number 4, prioritize yourself. You should learn how to comfort your own self. Because my love, no one else gonna do it for you. And it took me so long to understand that you can delete, block, cut off from people who are stealing your mental peace. And there's nothing wrong in that. Because we don't wake up each day to entertain these people. Know your worth. Don't settle for less. रेड फ्लैग सिर्फ रिलेशनशिप्स में नहीं होते हैं, ये हमें हर जगह देखने को मिलते हैं. सो डोंट बी कलर ब्लाइंड. रेड फ्लैग्स को पकड़ो एंड जस्ट थ्रो देम अवे. थ्रो दीज पीपल अवे. रूल नंबर 5, नेवर मैस विद द प्रोफेसर. ये तो वैसे शायद आपको पता ही है. यू नो उसके क्या कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं अगर तुम प्रोफेसर की नज़रों में आ गए हो. सो कीप इन माइंड, जब भी तुम प्रोफेसर से इंटरेक्ट कर रहे हो, जस्ट बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स इट. जो नेक्स्ट रूल है वो काफ़ी बेसिक सा है, आप लोगों ने पहले भी काफ़ी जगह सुन रखा होगा. अटेंड कर लेक्चर सीरियसली. मैं इतना ज़्यादा क्लासेस अटेंड नहीं करती थी. मैं पता नहीं खुद को लेके जा ही नहीं पाती थी कॉलेज तक. बट आई यूज टू मेक श्योर कि अगर मैं कॉलेज जा रही हूँ तो मैं क्लासेस सीरियसली लेती थी. आगे जो लोग बोलते हैं ना कि रोज़ पढ़ो, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. अब तक तुम लोगों को भी समझ में आ गया होगा. बिकॉज कॉलेज है वो बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो तुम रोज़ नहीं पढ़ सकते हो. बट आई विल से कि तुम रेगुलरली प्लीज़ पढ़ते रहो, क्योंकि लास्ट में बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा जाके. तो हाँ, हफ्ते में चाहे 3 दिन पढ़ रहे हो, बट 3 दिन अच्छे से पढ़ो. और ये जो लेक्चर्स वाला है, ये तो तुम्हें फ्री का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है. जस्ट ग्रैब इट. वो तुम वेस्ट मत करो. जो टाइम्स तुम लेक्चर में बैठ रहे हो, तुम बैठ भी रहे हो, दुख भी पा रहे हो, तो पढ़ ही लो ना. इससे अच्छा तो. Rule number, I lost count time. So build a hobby. MBBS is not all about studies. It's a time जहाँ पे तुम अपना personality development भी करने वाले हो. So all the things from your past you wanted to try, either it's playing guitar, playing piano, or reading any novel or books, just go for it. Because इसके बाद में तुम्हारा life इतना hectic हो जाएगा ना कि तुम्हें इन सब के लिए time ही नहीं मिलेगा. Next point, wake up to reality. It's not the fairy tale our coaching institutes used to show us, जहाँ पे सिर्फ मस्ती मस्ती है, तुम्हें पढ़ना ही नहीं है. जिस दिन तुमने साइंस लिया था ना, उस दिन से तुम्हारा और बुक्स का 7 जन्मों का रिश्ता बन चुका है. तो पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा. बट अगर तुम इंटरेस्ट लेके पढ़ते हो, इट गोना बी सो ईजी. बहुत ईजी है. अगर तुम इंटरेस्ट से पढ़ोगे तुम्हें एक बार में सब याद हो जाएगा. बट अगर तुमने उसको बर्डन माना, बुक्स वैसे ही बहुत भारी है, मर जाओगे तुम दब के. तुम्हारा 11-12 था ऑलमोस्ट वैसा सही है. फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री तुम्हें रिजेम्बलेंस लगेगा काफ़ी ज़्यादा. एनआर्ट इज समथिंग न्यू. तो मेक श्योर यू अटेंड डिसेक्शंस एनआर्ट में. चाहे एनआर्ट की अगर तुम क्लास पे मिस कर रहे हो, तो प्लीज़ एनआर्ट के जो डिसेक्शंस है वो तुम मिस मत करना. इट विल हेल्प यू लॉट.
और रेगुलरली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, बिकॉज वो थोड़ा थोड़ा हो के लास्ट में बहुत ज़्यादा हो जाएगा एंड तुम वो कोर्स ही कवर अप नहीं कर पाओगे। तो अपने ग्रुप में एक दो फ्रेंड्स ऐसे रखो जो तुम्हें रिमाइंड करवाते रहें कि हाँ भाई पढ़ना है। सम पीपल फाइंड इट हार्ड टू कोप अप विद द थिंग्स इन देयर फर्स्ट ईयर। सो हियर्स द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ माई पर्सनल फेवरेट लर्न लेसन। टेक इन चार्ज ऑफ योर लाइफ, track your time, and in spite of giving them to those multinational companies for free, invest it somewhere productive. Somebody person saying me कि तुम बहुत lucky हो, your life is so sorted. Am I really lucky? ज़िद्दी हूँ मैं. I have always got what I wanted in my life because I never stopped trying until I got it. इफ़ यू आर फीलिंग कि तुम्हारी लाइफ वैसी नहीं है जैसी वो होनी चाहिए थी, देन बनाओ उसे, एफर्ट्स दो। कोई दूसरा आके तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने वाला है। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कोई चीज़ चेंज करनी है तो तुम्हें एफर्ट देने पड़ेंगे उसके लिए। टेक क्राई बेबी एंड कंप्लेनिंग फॉर थिंग्स वोंट हेल्प। यू हैव टू टेक एक्शंस फॉर चेंजिंग थिंग्स। What people usually call fate is mostly their own stupidity. The decisions we are making in our present are gonna make our future. So अगर तुम अपना प्रेजेंट ठीक कर लेते हो, वॉट एवर योर पास्ट इज, तुम्हारा फ्यूचर अपने आप ठीक हो जाएगा। सो मेक श्योर यू मेक वाइज चॉइसेस एंड गिव योर टाइम एंड समथिंग प्रोडक्टिव। डोंट वैंडर एमलेसली। सिर्फ मेडिकल कॉलेज के अंदर एंटर होना ही तुम्हारा एम नहीं था। यू हैव अ लॉट मोर टू गो जंप एंड बीइंग एमलेस इट सीम एज बीइंग डेड। सो डिसाइड ए एम फॉर यू एंड वर्क ऑन इट। एंड कुछ और बेसिक पॉइंट्स जैसे कि गिव टाइम टू योर पेरेंट्स। Remember, whatever we are just because of them. So ये चीज़ कभी मत भूलना। Call them every day. Give all the time and love they deserve. And इससे तुम्हें भी बहुत अच्छा ही फील होगा। Lastly, have faith in yourself. At times you will feel very low और तुम्हें ये भी लगेगा कि यार मैंने क्यों ये कोर्स ले लिया। Like there was a time जब मुझे लग रहा था कि नहीं मुझे MBBS नहीं करना है। जब भी ऐसे थॉट्स माइंड में आए ना तो जस्ट वो एक चीज़ याद करना, नीट से पहले वाला दिन जब यू वर लिटरली बैगिंग टू गॉड कि प्लीज़ मेरा सिलेक्शन हो जाए, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे MBBS करना है। जस्ट कीप इन माइंड एंड आई बिलीव यू ऑल गोना मेक ग्रेट डॉक्टर्स। सो बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू।